السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، 2 روز پہلے ایک قومی سانحے کے نتیجے میں 47 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جن میں ہمارا پیارا دوست اور ایک انتہائی خوبصورت انسان جنید جمشید بھی شامل تھا. آج کل چونکہ بازار سیاست قدرے ٹھنڈا ہے، اس لیے ہم لائیو شوز نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ہم اپنے بچھڑنے والے ان پیاروں کو یاد نہیں کر سکے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس عطا کرے. جنید جمشید کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ وابستہ ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ جنید جمشید کے ساتھ فون پر بات کی. جو دلچسپ مکالمہ ہوا، اس سے جنید کا امپریشن یکسر تبدیل ہو گیا. میں اس شخص سے اس قدر متاثر ہوا اور مجھے یقین ہے کہ میں مرتے دم تک متاثر رہوں گا. اس کی تفصیل ہم آپ کو کل سنائیں گے، کیونکہ آج شو قدرے طویل ہے اور وقت کی قلت یقیناً حائل ہوگی. چنانچہ چلتے ہیں ریگولر شو کی طرف. خواتین حضرات، پاکستان کی کل آبادی تقریباً 19 کروڑ بتائی جاتی ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سے 6 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. گویا ہر تیسرا شخص پاکستان میں غریب ہے. 118 ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ میں پاکستان کا نمبر 107واں ہے، جبکہ بھارت 97 یعنی 97 نمبر پر موجود ہے. افغانستان کا نمبر اس حوالے سے 111 ہے، اور افغانستان کسی بھی وقت ہمیں اس کاؤنٹ پہ بھی بیٹ کر سکتا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے ہیلتھ گولز وضع کر رکھے ہیں، اور اس حوالے سے 188 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 149واں ہے، اور یوں ہم بنگلہ دیش اور موریتانیہ کے ہمسائے بن چکے ہیں. ایک نیا کانسیپٹ ہے خواتین و حضرات، آپ نے سنی ہوگی سٹنٹڈ چلڈرن، یعنی وہ بچے جو ذہنی اور جسمانی طور پر کم رہ جاتے ہیں، ان کی نشو و نما میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سینیٹیشن ہے. ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن سے براہ راست متعلق یہ چیزیں ہیں، اور پاکستان میں 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ چلڈرن کہلاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ریشو 24% ہے، جبکہ پاکستان میں الارمنگ 50% ریشو ہے سٹنٹڈ چلڈرن کی. ایک وقت تھا کہ ہماری سرزمین ہٹے کٹے کڑیل جوان پیدا کرتی تھی، اور جن کی شہرت یورپ اور امریکہ تک جاتی تھی، لیکن آج ہمیں سٹنٹڈ نیشن ہونے کے دھانے پر پہنچا دیا ہے ہماری ہیلتھ اور سینیٹیشن نے. پانی کی قلت ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس حوالے سے جو 4 انتہائی انسیکیور ممالک ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے، اور تمام ماہرین اس پر متفق ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی اگلی جنگ پانی پر ہوگی. مودی صاحب نے حال ہی میں اس حوالے سے طبلِ جنگ بجانا شروع کر دیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی خاموشی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مجرمانہ خاموشی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سر، پانی سے متعلق ہماری ذمہ داری دیکھیے کہ ہم صرف بھاشا ڈیم کا افتتاح 4 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن حرام ہے کہ وہاں سوائے ایک چارپائی اور 2 کرسیوں کے کوئی قابل ذکر چیز نظر آتی ہو، کیونکہ میں اس کا ایک چپا دیکھ چکا ہوں. سر، ڈیم بنانے میں کتنے سال لگیں گے؟ اس کو کمپلیٹ ہونے میں 5 سال لگیں گے اگر کل شروع کر دیا جائے، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ رفتار انسانی نہیں جناتی چاہیے، تب جا کر 5 سال میں ہم ڈیلیور کریں گے. اور بھوک کے حوالے سے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. مریم کے پاس کوئی سٹیٹسٹکس ہے؟ جی. خبر ہے کہ عالمی سروے کے مطابق بھوک میں پاکستان کا 107واں نمبر ہے. ایک بار پھر دیکھیے کہ ٹوٹل ہے 118 ممالک، اور ہمارا نمبر 107واں ہے. گویا ہمارے پیچھے صرف 11 ممالک. بیڑے گھر کوئی پہنا اس ملک دے دسو کھ نہیں بچیا انا ہے. وہی تو میں کہنے اتنے کوئی شاید نہ کھان نو لبن رہی ہے نہ پین نو لبن رہی ہے. کی بنے گا سارے سارے دا تسی دسو جناب. ہاں جی، یہ بول نہیں رہا، پروگرام چھڑ کے نکلتے نہیں گئے. بھائی جی سے تھوڑے نال گل کر رہے ہیں. ہاں جی، میں ادھر بیٹھا ہوں، ادھر میں دیکھ رہا، تمہیں نظر آ رہے ہیں.
बेड़े गरक होए पैन साडे सारियां दे। तो किसने किए बेड़े गर्क? तुम्हारे कायदीन ने, तुम्हारे लीडरों ने, जिन्हें तुमने वोट दिए। यही तो रौला है, जिन्होंने वोट देने तुसीं उन्होंने काम ही नहीं करन दिंदे। काम नहीं करने देते। हर तरीके ते तुसीं जमहूरियत नूं पटड़ी तो ला दिंदे हो। और किसने उतारा जमहूरियत को? पिछले 8.5 साल से पटड़ी पे चल रही है। क्या मिला इस जमहूरियत? ये जमहूरियत की पैरोडी है। बेवकूफो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? आप 8.5 साल को रो रहे हैं। अमेरिका में जमहूरियत 200-250 साल के बाद आई है। ये बात तुमने किससे सुनी है? आपने लीडर को सुनी और किसी को सुनी है? साहब बादल सनवे दसो साडा मसला किदों हल होएगा, किदों ये गुरबत दूर होएगी? बोल दे क्यों नहीं साहब बादल? अच्छा जदों बोलदी लगता है जलसा मुकन वाला है। नाले आस्ता बोलिया कर, तू तो साढ़े कान पार देनी है। किदों साडी गुरबत दा खात्मा होना है? जब तक तुम गलत लोगों को वोट देते रहोगे तुम्हारे हालात ऐसे ही रहेंगे। अरे तुसी पानी की गल कर रहे थे। हाँ जी। लाहौर नूं देख लो, 50 टूअल लाए ने इस हुकूमत ने। अकल के अंधो सिर्फ इसी पे गौर कर लो कि किस कदर इल प्लान तुम्हारा ये पानी का प्रोजेक्ट है कि 50 ट्यूबवेल्स लगा दिए, इंतहाई सस्ता और वाफिर पानी दे रहे हो। ये जिसको तुम फॉलो कर रहे हो इस्तांबुल को, इस्तांबुल में जितना पानी फी कस दिया जाता है तुम उससे ज्यादा दे रहे हो। और 3 साल बाद हाथ पे हाथ रख के बैठे होगे। क्यों? नलकों में पानी की जगह हवा निकलेगी। और उस वक्त फिर तुम याद करोगे अपने उन हुक्मरानों को जो सिर्फ लोहा दे के जा रहे हैं तुम्हें, लोहा ही लोहा। सर इस हिसाब से चीफ मिनिस्टर की बेनियाजी देख लें आप। जी। वासा के एक अफसर ने उनसे कहा कि जनाब हमने करोड़ों रुपए लाहौर शहर से वसूल करने हैं, आप हमें पुलिस दे दें ताकि हम वो रिकवरी कर सकें पानी की मद में। जी पानी की मद में। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब मैं पानी के बिल इकट्ठे करने के लिए पुलिस लोगों के घर भेजूं। भाई अगर आप बिजली के बिल वसूल करने के लिए पुलिस भेज सकते हैं तो पानी क्या कम अहमियत रखता है? देखो ना साढ़े हर दफा यही करते हो, अपनी बारी पे क्यों नहीं बोलते? आप सारे बैठे जरा, भाई पीछे जाके बैठो जरा, दीवार के साथ बैठो। आओ जी आओ, काका ध्यान ना बेरवेज दा बच जाओ। पहली बात तो यह है कि इनमें से कोई भी नाबीना नहीं है। हेलो, इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है और ये खाम खा अपने आप को नाबीना पेश करके मरात मांगते हैं। ये देखो तुम्हारी बदतहजीबी जो है ये तुम्हारे जुमला मसाइल में शायद सरे फहरिस्त है। अब ट्रेजेडी देखिए कि हर जलसे में खाने का एहतमाम किया जाता है, देगों पर देगें पकती हैं और तमाम लीडर्स बशमूल इमरान खान, कभी किसी ने यह तमीज सिखाने की कोशिश नहीं की कि कतार में जाकर खाना लो, कमबख्तो सबको मिलेगा। ये रिसेंटली यौम तासीस पर मंजर देखने वाला था पीपल्स पार्टी के यहां। वहां तो खैर हमेशा ही होता है, कम से कम इस नई क्यादत को यह चाहिए कि भी आज तक कभी तुम्हें किसी ने नहीं समझाया, मैं समझा रहा हूं कि खाना लेना है तो लाइन में लगो। वो कच्ची देगें उल्टा दी लोगों ने, किसी को कुछ नहीं मिला। और ये बात करते हैं नाबीना बनके, खाम खा। ये नाबीना नहीं है, इनकी अकल पे पर्दा है। तुसी ये दसो ना सानू फायदा कि नबीना बनन दा? फायदा यह है जनाब कि इस मुल्क में एक कल्चर है जो गरीब बन के लोगों से फायदा लेते हैं। जी मुफ्त। आप दूर मत जाइए, रमजान में देखिए क्या धक्कम पेल होती है राशन के लिए। ऐसी ऐसी मिसालें हैं। सिंध में लातादाद अमवात हो चुकी हैं राशन वसूल करने वालों। तो सर गरीब आदमी की करे जिन्होंने ना कभी फ्रूट नसीब हुआ है, ना रोटी ना गोश्त। तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं वैसे कि तुम हमदर्दी के काबिल हो, लेकिन असल कसूर है तुम्हारे कायदीन का। अब देखिए इमरान खान ने नई नई इख्तराएं उसके यहां देखने में आती है, इसलिए कि मॉडर्न है, यंगस्टर्स हैं उसके साथ, यूथ है। वो डीजे का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, गानों का, नगमों का, तरानों का कॉन्सेप्ट लेकर आए। क्या ही अच्छा होता कि आप कहते जी मैं हर जलसे में एक पते की बात, एक बात पाकिस्तानियों के लिए ऐसी करें जो गैर सियासी हो, जो उनके दिल को लगे, उन्हें गाइड करे, उन्हें समझाएं कि एक उस्ताद बता रहा है, लीडर टीचर की तरह होता है, अतालीक की तरह होता है। यह है सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि हमारे लीडर्स जहां और बहुत सी चीजों से गफलत बरतते हैं, वो तहजीब भी नहीं सिखाते। यानी ऐसे सियासी अतालीक हैं कि इन्होंने आपको एहतजाज करने का तरीका ही नहीं सिखाया। एहतजाज से मुराद लोग ये लेते हैं बाहर निकले, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दें, गाड़ियों के शीशे तोड़ दें, रोड ब्लॉक कर दें, ये एहतजाज है। ठीक 5 मिनट बाद पुलिस आ जाती है और मार मार के एहतजाज सुझा देंदी है।
नवाज शरीफ के एक एक जलसे में बकौल नवाज लीग 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लोग होते हैं। जो छोटे से छोटा जलसा यानी जलसी भी है वो भी 50-60 हजार की है। इमरान खान 10-10 लाख का क्लेम लेकर आते हैं कि जी बहुत बड़ा जलसा। आप इनसे सिर्फ एक गुजारिश क्यों नहीं करते कि कुछ भी और ना करें, फीकस एक एक दरख्त ही लगा दें। आप अंदाजा करें गुलो गुलजार हो जाए पूरा पाकिस्तान अगर आप अपने जलसों में ये गुजारिश करने लगे हैं। और याद रखिए ये आपका इंतखाबी वादा भी है और अपने इंतखाबी वादों में आप हमेशा अल्लाह ताला को गवाह ठहराते हैं। अच्छा जिवें ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तकरीर सुनने हैं ना, साडे कायदीन भी इंज सुन रहे होंगे ने। काश वो ऐसे सुनते, वो नहीं ऐसे सुनते। अच्छा आप बताइए खातून क्या मसाइल है आपके? आप मेरी बात कर रहे हैं? अच्छा ये मेरे नाल बैठी मैं तो अभी लड़की हूँ, खातून कह रहे हैं मुझे। लड़की बताओ क्या मसला है तुम्हारा? अबे देखो ये तो छेड़ने लग गया। अच्छा तो भाई लड़ भी नहीं सकते ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्योंकि सारे अन्ने हैं। कोई एक मसला हो तो बताएं। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना पानी है, ऊपर से ये वो है आए रोज छीना झपटी करते रहते हैं। ये कौन है? ये जो मोबाइल छीनते हैं, परस छीनते हैं। अल्लाह मारे ना पुलिस आती है ना इन्हें मौत आती है। अच्छा ना देखो रोटी है ना कपड़ा है, फ्रेश की आवाज है दी। आपका मोबाइल भी छिना है किस्तों पे लिया था पूरे 20,000 रुपए में। और 20,000 रुपए का मोबाइल लेना किस हकीम ने कहा था? लो 20,000 से कम में मोबाइल कहाँ आता है? तुम्हें तो चैनल की तरफ से मुफ्त मिल जाता होगा। वाह भाई वाह, इनको अपना लीडर बनाओ। तुम्हारी ट्रेजेडी है कि तुम अपने जैसों को लीडर बनाते ही नहीं हो। अच्छा जी आप भी इनके साथ ही हैं आज? सर आपको पता है मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं हटके हूं। तो सोशल बाइकआउट करते हैं आपका ये? सर मुंह नहीं लगाते, बात नहीं करते, और मैं भी लानत भेजता हूं इन पे। देखा ना सोसाइटी इस तरह तकसीम हो चुकी है। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये मेरे साथ अलहदा जलंधर रेडियो शुरू हो गया है। क्या रेडियो? जलंधर सर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣੋ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦਾ। आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? और जी गरीब आदमी है, 12 बच्चे ने मेरे। ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ अच्छा जी 12 बच्चे ने? हाँ जी। भरजाई फौत हो गई है। भैया जो तुम्हारे साथ बैठा है सो रहा है क्या? हेलो इधर इधर मेरे हाल देख। अच्छा ए, मारन की टाइम की समय दी बहुत अच्छी है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ਮੇਰੇ ਜੀ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ये मेरे ख्याल इको गली च रहंदे ने। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੰਗ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। हाय अच्छा जी भाभी भी इन्ने ही ने, तब भी इतने बच्चे हो सकते हैं। आफ्ताब साहब ये तो थी ना प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है इन मसाइल का? सोल्यूशन बड़ा सिंपल। सुबह शाम हम इसका तस्करा करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं अपनी तहरीरों में, तकरीरों में। मेरा ख्याल है हमारी बातें भी अपना असर खो बैठी। अब इसका एक तो इर्तकाई तरीका है कि जमहूरियत को पटड़ी पे चढ़ा रहने वो रींग रींग के स्नेल स्पेस पे जा रही है। अगले 60-70 सालों में देखें कोई फर्क पड़े। ट्रेजेडी ये है कि आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। आपकी कौम एक मरीज बन चुकी है और अनफॉर्चुनेटली इस मरीज के पास लीज ऑफ लाइफ इतनी नहीं है। तो फिर क्या करें? दूसरा तरीका रेवोल्यूशनरी है। एक इनके दरमियान में भी रास्ता है और वो ये है कि यहां की स्टैब्लिशमेंट को बारे दिगर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, उसे ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या इसी पैरोडी ऑफ डेमोक्रेसी के साथ अगले दौर में दाखिल होना है या कोई नई चीजें, नई शक्लें वजा करनी है, नए कवानीन बनाने हैं। यानी ये कैसी जमहूरियत है जिसमें इलेक्शन कमीशन वो सफेद हाथी है जिसे 70 साल बाद पहली मर्तबा अब ख्याल आया कि ये जो अपने एसेट्स लिखते और खानापुरी करते हैं हमारे मुंतखब कायदीन, हमारे मुंतखब मेंबरान असेंबली, उसकी जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। पहली दफा कुछ प्रतीत होने लगी है और बड़े बड़े लोग इस वक्त डीसीट हो रहे हैं। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट को एक रोल प्ले करना चाहिए और दूसरा रोल प्ले करना चाहिए मीडिया को। मीडिया को इसमें कोई शक नहीं, बेशुमार मसाइल है, वो जितना कमाता है उससे ज्यादा उसे लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसी के अंदर उसे कुछ टाइम, कुछ स्लॉट्स निकालनी है गाइड करने के लिए। क्योंकि अगर यहां के कायदीन अवाम को गाइड नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे, तो खुदारा मीडिया वालों तुम तो करो, तुम तो सुरखरू हो। अपने इसी इश्तहारी टाइम में से थोड़ा सा वक्त ज़कात समझ के
کوئی خیرات سمجھ کے صدقہ سمجھ کے اس قوم پہ خرچ کرو, یہ ڈیویڈنٹ ہے اور اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. واہ. مڑ بولے ہیں ہجی کام شروع نہیں, تو چپ رہنا ہے یار آپ کھل کے بولا کریں, سر. تھوڑا کو مسئلہ ہے. تمہارا مسئلہ میں ابھی کرواتا ہوں. اچھا ہجی کام شروع ہی ہوا ہے. نہیں, پروڈیوسر سن رہا ہے اس وقت. اچھا پروڈیوسر سوندا نہیں تھوڑا, ہر ٹائم سن رہا ہوں. اچھا جناب, آج پہلا لفظ ہے یرغمال. یرغمال. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے, یرغا اور مال. یرغا گھوڑے کو کہتے ہیں. سر ویسے اس کا یرغمال کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ پرانے وقتوں میں جب حکمران جنگیں جیتا کرتے تھے, دوسرے سے اپنی شرائط منوانے کے لیے مال و زر کے ساتھ مشروط کرتے تھے. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اتنے لاکھ روپے دو گے, وہ کہتے تھے تم اس وقت 10,000 اونٹ دو گے مجھے, تو مجھے 5,000 گھوڑا دو گے. یہ اس وقت کا رواج ہوتا تھا. تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو یرغا مال ہے, یہ تو وہ مال ہے جو میں نے ان اینی کیس دینا ہی دینا ہے اس جنگ کو ہارنے کی پاداش میں. سر یرغمال تے اغواج کی فرق ہے؟ دونوں میں وہ فرق ہے جو چور اور ڈکیت میں ہوتا ہے. یہ تو زیادہ پتہ ہونا. اب دیکھو نا, چور پوشیدہ ہوتا ہے, ڈکیت اعلانیہ ہوتا ہے. تو یرغمال اعلانیہ ہے, اغوا پوشیدہ ہے. اغوا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اے بچوں جلیبی نکلونی. جلیبی نہیں, عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے غلط راستہ بتانا. یہ جو پہلے کسی کو لوٹا کرتے تھے اسے پہلے غلط راستہ بتاتے تھے, کہ ادھروں آ. گمراہ کرتے تھے کہ اس طرف جانے کی بجائے یہ راستہ شارٹ ہے, یہ بہتر ہے, تاکہ وہ جنگل میں سے جائے, دشوار گزار راستے میں سے جائے, وہاں اس کے ساتھی موجود ہوں گے. یہ تھا اغوا, گمراہ کرنا. اور گمراہ اسی سے نکلا کہ وہ بیچارہ اپنا راستہ بھول جاتا ہے. نہیں وہ بیچارہ پاگل یا نہیں تھا, یعنی کہ ہن کسی کو راستہ پوچھو جڑا دسے ادھر نہیں جانا, تو بندہ سارا دن کھجل ہی ہوتا رہے. نہیں, یہ ثواب کا کام ہے ٹھیک راستہ بتانا, اور یہ آپ کا فرض بھی ہے. لیکن یہ جو مکار, چور, ڈکیت ہوتے ہیں یا پھر 2 نمبر سیاستدان, یہ بھی تو آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے سو کالڈ لیڈرز ہیں, یہ گمراہ کر کے ہی تو آپ کو بھٹکاتے ہیں, اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں, اور پھر آپ کو اغوا کیے رکھتے ہیں 5 سال. غور کرو, یہ لفظ میں سمجھتا ہوں بنا ہی ہمارے ووٹرز الیکٹوریٹ کے لیے. اسی سارے اغوا ہوئے, اغوا بھی ہو اور یرغمال بھی ہو. اور سی کی ہے. سر ویسے ایس فلینگ تو منہ بھی کوڑیا گئی. اچھا جناب, پھر ہے لفظ آغا. آغا. آغا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا اور آغا دونوں ایک ہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا, آقا فارسی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے مالک, سردار, سربراہ, برادر کلاں, بڑا بھائی, چیف. جبکہ آغا ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خواجہ سرا. یہ اس دور کی درباری فریز ہے. خواجہ سرا کو محل سرا میں کام کرنے والے افسروں کو بھی کہا جاتا تھا. فرنگ آصفیہ میں لکھا ہے کہ آغا ایسی کٹنی کو, یعنی ایسی مکار عورت کو یا ایسی نائکہ کو کہتے ہیں. ان آج لمبا کرو ذرا, آگے انہوں نے تھوڑا لمبا کرو تو عزت بھی کرو, جو 2 پارٹیوں کا میل کرواتی ہے آپس میں. بچولن. ہاں جی, اور کٹنی دیکھو, جیسے پھپھے کٹنی نہیں کہتے آپ. ہے تو ویسے بھپے کٹنی ہے. یہ سر فرنگ آصفیہ کہندا ہے. فرنگ آصفیہ نہیں, فرنگ بزرگ بھی یہی کہتا ہے. وہ بھی آگے دے خلاف نے. بلکہ فرنگے بزرگ کھنگ کے کہندا ہے. اچھا جی, بابے اور کی کہندے نے؟ بابے ہوری کون سے؟ اے فرنگے بزرگ. یہ کہتے کہ ایسی کٹنی کو آغا باشی کہتے ہیں. لیکن کنفیوژن پتہ کہاں پہ؟ کہاں سر؟ آج کے ایران میں کاف کو غین بولا جاتا ہے, یعنی قریب کو غریب کہتے ہیں. غریب. اگر کوئی فارسی دان آپ کو قریب آنے کو کہے گا تو وہ غریب آنے کی بات کرے گا. چنانچہ اگر آج ایران میں کسی کو آغا کہیں تو وہ آقا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. آقا کا بگاڑ آغا ہے, جبکہ حقیقتاً 2 مختلف الفاظ ہیں. کنفیوژن کی وجہ یہ کاف اور غین کا آپس میں متصادم ہونا. پھر ایک لفظ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے دوحہ میں شو کے دوران کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بحیرہ. کہتے بحر عرب. جی جی. بحیرہ عرب, یاد نہیں؟ جی سر بالکل. یہ بحیرہ ہے. وہ حیرہ عرب. میں اس پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی میموری بہت شارٹ ہے.
मेरा ख्याल था कि आपको अभी 3 माह हुए हैं, सर ना ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ फिर तुम्हें ये भी एक गलत फहमी है कि शहद खाने से मेमोरी शार्प होती। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ सर तो शहद फिर लोग क्यों इतना खाते हैं? इतना खाते हैं? कौन इतना खाता है? 1 चम्मच बड़ा नीम गर्म पानी में सुबह सुबह पी लो, बस दैट्स इट। रोज पी लो अगर मुयस्सर है तो। अच्छा उन्होंने साड़ी गुर्बत का अंदाजा है। सर आप आजकल कौन सा खा रहे हैं? शायद मेरे पास 2-3 है, फैक्ट्री तो नहीं बना लेते? मैं खा वही रहा हूं जो एडमिंटन से लेकर आए थे ना, वहां एक साहब ने मुझे 2 जार्स दिए थे शहद के, एडमिंटन जब हम गए। जी जी जी। यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई ये भी करेगा। इन्होंने अस्पताल से भी शहद मिल जाता। सर ये असली और नकली शहद की क्या पहचान है? बहुत सारे तरीके हैं जांचने के, लेकिन बुनियादी है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर चम्मच से शहद डाल दें। अगर तो वो एक जगह पे जम गया तो वो असली है, अगर पानी में तहलील होने लगा तो वो नकली है। वाह वाह। फिर आप नाखून के ऊपर 1 कतरा फेंके, अगर बह निकला तो नकली, जमा रहा तो असली। साढ़े को 1 कतरा शहद है, अगर बह निकले तो साडा बेड़ा करो। बुहैरा, मेरा बुहैरा बर वजन हुमैरा, सुमैरा, इस वजन पर याद रखिए। ये तस्गीर है ना बहर की, बहर समंदर, बुहैरा छोटा समंदर, उसकी तस्गीर की हुई है। जैसे बुहैरा रूम है, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन पता ना क्यों कहते हैं मेडिटेरेनियन? मैडी, मैडी मीन्स मिडल, टेरेन जमीन, के जमीन के सेंटर में वाक़े जो समंदर है उसको मेडिटेरेनियन कहते हैं। ये भी मैंने दोहा बताया था, और एक नौजवान ने मेरे सवाल का जवाब दिया था खड़े होके, मेरे क्विज को बूझा था। हाँ जी। नहीं याद? ऐसे ही सारे लाए जा रहे हो बकरे की तरह। वो मुंडा हुण उत्थे पागल खाने जी। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ अच्छा समुंदर भी गलत है। ਆ ਲਓ नहरां भी गलत ने, समंदर दरिया गलत ने, पहाड़ गलत ने, खुशकी रेत गलत है। ये नून के बगैर है, समुद्र। समुद्र ये नून इजाफी है, गैर जरूरी खुद लगाया हुआ है। सर कुल समुद्र कितने हैं? 5। अगर तुम उनके नाम बता दो तो 10,000 मैं तुम्हें अभी कैश दूंगा। बहरुल काहल, हाँ अच्छा इन्हों भी कोई याद। बहरे मुंजमद, हाँ 2 शिमाली, 2। ਬਹਿਰੇ ਅਰਬ बहरा अरब। वो बुहैरा है, वो समंदर नहीं, वो छोटा बुहैरा। उस तरह के तो लातादाद बुहैरे हैं। 5 बड़े समंदर के हैं। और मैं तरीका बताता हूं आपको। एक लफ्ज है पैसा, PAISA, पैसा। पैसा हमारे पास नहीं है। पैसा से आपको तमाम समंदरों के नाम याद रहेंगे। P फॉर पैसिफिक, पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न ओशन, A फॉर आर्कटिक ओशन। ते बहरुल काहल कुछ नहीं सीखेगा। बहरुल काहल पैसिफिक, इंडियन ओशन बहरे हिंद है, बहरे ओकियानूस, ओकियानूस इज अटलांटिक, ते मंजमद जेड़ा कह रहा सी आर्कटिक। सर वो जो ब्लैक सी है वो भी? ब्लैक सी तो इस्तांबुल जिसके किनारे पे है, टर्की में है, और ये सी है, बुहैरा है। इसी तरह कैस्पियन सी भी है। अच्छा सी अलहदा है और समुद्र अलहदा सी है? तो छोटा सा बुहैरा होता है। सी इज बुहैरा, जिससे ये डिस्कशन शुरू हुई थी। सर आज का शेर। अच्छा जी, आज का शेर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से है। जफर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत गजल का शेर है, लेकिन सफर मिराज की इससे खूबसूरत डिपिक्शन हो नहीं सकती। वो कहते हैं कि रात वही है अर्जमंद, वाह, जात वही है सरबलंद। सुभान अल्लाह। रात वही है अर्जमंद, जात वही है सरबलंद, लम्हा जां गुजर गया जिस्म के माहो साल से। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म नजमा से। मास्टर इनायत हुसैन की निहायत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स हैं कतील शिफाई की,
गाया माला और अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद और साथ देंगे बिलाल अली मीर। जी चले ठंडी हवा थम थम, चले ठंडी हवा थम थम, ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडी हवा थम थम, होए होए चले ठंडी हवा थम थम, ऐसे तुझे चाहूं फूल को जैसे शबनम। चले ठंडी हवा थम थम। मैंने अपना बनाया तुझको, दगा देना ना सैया मुझको। मेरे सीने में तेरे ही लिए जलते हैं वफाओं के दिए, रखना है तुझको मेरी वफाओं का भरम। तुझे चाहूंगी मैं हरदम, हाँ जी तुझे चाहूंगी मैं हरदम। ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडी हवा थम थम, होए होए चले ठंडी हवा थम थम। ऐसी खाई है तूने कसमें, रहा दिल ही न मेरे बस में। तेरे दिल की कहानी बन के मैं तो आई हूँ रानी बन के। तेरे संग नाचे मेरी जवानी छम छम। होंगे अब ना जुदा कभी हम, हाँ हाँ होंगे अब ना जुदा कभी हम। ऐसे तुझे चाहूं फूल को जैसे शबनम। चले ठंडी हवा थम थम, होए होए चले ठंडी हवा थम थम। जिंदगी मुस्कुराती है जहाँ, मुझे ले चल उड़ा के तू वहाँ। आने वाली है वो ही मंजिल, जहाँ नाचेगा तेरा मेरा दिल। पीछे ना हटाना आज बढ़ाया जो कदम। मेरी चाहत ना होगी कम, होए होए मेरी चाहत ना होगी कम। ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडी हवा थम थम, होए होए चले ठंडी हवा थम थम। हाय हाय चले ठंडी हवा थम थम। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। खुदिनो हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी साहब जो उनके सियासी अतालीक हैं, और इन सब के हमरा मौजूद हैं पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी की एक सरगर्म कारकुन। जी बिलावल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब अंकित। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी, आपने आज मुझसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करना। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करना? नहीं। तो फिर और क्या, स्पोर्ट्स डिस्कस करें? अच्छा, कोई जुगता नहीं करना बच्चे ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਯੌਮੇ ਤਸੀਸ ਮਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ अच्छा, क्या कहा? ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ। अच्छा ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा जनाब, ये फरमाते हैं कि 2017 इलेक्शन का साल है,
तो फिर ये लड़काने से जिमनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਕਟਾ ਰਵੇ ਅੱਗੇ ਵੇਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਪਲਸਟਰ ਲਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਅਸੀਂ चौधरी अंकल ग्रो अप प्लीज। बात सुनो, मुझसे भी कुछ पूछोगे या ये देहाती प्रोग्राम ही चलता रहेगा? ਕਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ लगता है घर से आलू का बीज खरीदने आए हो। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ क्यों चुप कराए? ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्यों जी, आप वाकई डर जाते हैं? हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए। सर चाहिए सर देंगे हम, खून चाहिए खून देंगे हम। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਟਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ और क्या, सर और खून दोनों। ਉਹ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰਸੂ ਮਰਸੂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ मरसू मरसू सिंध ना देसू, मरसू मरसू। ये पार्टी भी निरी नौटंकी रह गई है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਡਾਲੇ सीट का क्या है, जितनी चाहे ले लेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲਰਕਾ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੈ अच्छा जनाब, सुना है करीब आप टीवी पे जलवा फरोज होने लगे। आफ्ताब अंकल मैंने सोचा है कि मैं टीवी पे आके डिस्कशन प्रोग्राम्स करूंगा। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या खास फायदा होगा? जो जुबान तू बोलता है ना वो उर्दू है, ना अंग्रेजी है, ना सिंधी है, ना पंजाबी है। इशारों की जुबान बोलेगा क्या? ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਉਠਾਓ ਇਥੋਂ चौधरी, सिंध अर्बन सारे का सारा हमारा है। देखना सारी सीटें हम ही ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? तो और क्या, कराची भी हमारा है, हैदराबाद भी हमारा है। ਸਿੰਧ 'ਚ हैदराबाद ਤੇ कराची ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं। सिंध अर्बन की बात करी हूँ, गंजी खुसरी। अच्छा, बिलावल एंजॉय करता है वैसे विट को। ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ हाँ वाकई भाई, मैं हैरान रह गया हूँ। चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई बिलावल से, असली बिलावल से। ये तो डमी म्यूजियम है। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਸਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। असली तो बहुत ही विटी है, बहुत शार्प है। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ तो तुम यूं समझो कि अगर नासिर चिन्योटी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लेना तो वो हिसाब है। ਤੇ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ अच्छा जी, आप मिली हैं बिलावल से? कई दफा मिली हूँ। मुझे तो लगता है ऑक्सफोर्ड में सिर्फ जुगते सीखने गया था। यू सो टैलेंटेड। मैं रिक्वेस्ट की हूँ आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं आती? तुम्हारे पल्ले है क्या? एक जमाना था बड़ी लिबरल पार्टी होती थी तुम्हारी। तो अब क्या प्रॉब्लम है इस पार्टी को? आपको याद नहीं वो जमाना जब ये लेफ्ट की सियासत करते होते थे? हाँ जी, लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी, चेयरमैन भुट्टो की बनाई हुई पार्टी। अब देख लें, ये भी राइटर्स हैं और नवाज लीग भी राइटर्स हैं। दोनों में फर्क ही कोई नहीं है। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਸਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਨੇ BBC ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ये भी कर लो ये भी कर लो वो भी हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਜਾਵਾਂ अच्छा जी, आपकी पार्टी मुशर्रफ की राह क्यों तक रही है? देखिए, मुशर्रफ भी किसी वक्त हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मुशर्रफ एक अच्छे लीडर हैं। अच्छा जी PSP ने ना हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ PBP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान बतख पार्टी क्या पार्टी? बतख पार्टी आपकी पार्टी पे इस्टेब्लिशमेंट की छाप है, क्या कहेंगे आप? तो एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, फ्रांस की थोड़ी है। अच्छा करो, लड़के आई है। फिर बोली तू? फिर बोली तो हनी बोला है, रूबी नहीं। मैं इसी घोड़े की बात करी हूँ। गंजी खुसरी इसी को बोला था ना। अच्छा जुगत करके भूलती भी नहीं है अच्छा जी, पहले किस पार्टी से आपका मैं ताल्लुक था? यकीन आंदा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ सर बिलावल को लैट ही ठीक करा लो। अच्छा जी, डॉग्स का बहुत शौक है आपको, जी। तो कौन कौन से डॉग्स हैं आपके पास? आफ्ताब अंकल मैं जर्मन शेपर्ड्स पसंद करता हूँ और मेरे पास कुछ खास किस्म के जर्मन शेपर्ड्स हैं। खास किस्म के क्या? ਗੇਰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ये क्या ऐसी बात हो, तुम भी ला सकते हो। अच्छा जी, वो खास किस्म के शेपर्ड्स क्या है? वो वाइट हैं, वाइट जर्मन शेपर्ड्स। ओह, हस्की, हस्की कहे ना उन्हें। या हस्की भी कहते हैं, मुझे लगा यहाँ किसी को पता नहीं है कि हस्की भी कहते हैं। हस्की जहाँ की नस्ल है ना, वहां से ये होकर आए। मैं क्या पता नहीं करनी ये उसी नस्ल का है। वहां से ये होकर आए हैं कनाडा से। सर तुसी गल पहले करा करो, इशारा बाद। सर ये कनाडा की नस्ल है? हाँ जी, और स्कीमोज के कुत्ते हैं ये, बहुत खूबसूरत व्हाइट और भेड़िए जैसे। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ हाँ जी, जो रेडी खींचते हैं। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮੋਸੇ ਨਾ ਲਾ ਲਈ ਰੇੜੀ अच्छा जी, आप यौम तसीस पे नजर नहीं आए? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं वाकई मुझे बहुत ज्यादा ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ देखो पे तुम। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਤੇ ਖਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਛਡਾਇਆ अच्छा अच्छा। ਉਹਨਾਂ का दरवाजा खोलो वर्कर बाहर बहुत ज्यादा है नहीं, चंद की बात दुरुस्त थी, लेकिन कायरा भी गलत नहीं कह रहे थे।
اس لیے کہ اتنا رش پھر کہاں اکاموڈیٹ کہاں کیا جاتا. گھبرا جاندہ نا بہتے بندے ویکے دا منہ سجی بتک رگا ہو جاندہ ہے. اس لیے میں بھی کہا بھائی باہر رکھو بندے. ادھر میں روٹی کھول دیتی. تو روٹی کھولنے سے کیا ہوا؟ وہ چند بابا آرے لگ گیا نا. اچھا چودھری تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اگلے الیکشن میں پی 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 نے کلین سویپ کر جانی ہے؟ کیا کوئی ملنگنی ہے؟ نہیں واقعی اس بات پہ ہنسی آتی ہے. کہا دلی ہسی آندھی ہے میں تو سچ کہہ رہے ہیں سویپ کریں گے اسی کیسے کیسے سویپ کریں گے؟ تو ساری ڈیل تے ہو لین دیو. کس کے ساتھ ہونی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نال ہور محکمہ صحت نال. اگلا وزیر اعظم یہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تے جڑا ہے اے ہو سکتا ہے اے نہیں ہو سکتا. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ نال ڈیل انہوں سے کیتی بیٹھے تنقید دسی ہے. بتاؤ تو صحیح نا کیا ڈیل کیا کی ہے؟ آ جانیے گا گو نواز گو نواز گو نواز گو بس دل وٹی رکھو کیتے نا پتر. اچھا پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہو؟ میں تو زرداری صاحب تو. اور میں ایان علی سے. واہ واہ. Let's excuse me, Ayan Ali is not a member of the party. اور کیا ممبر آف دا ہاؤس ہولڈ ہے. اچھا یہ تو ہر گل کا جواب ہے. بہتر انہوں اوائڈ ہی رکھو. بھئی آج مزہ نہیں آیا. بلاول نے کوئی پولیٹیکل بات تو کی نہیں. آفتاب انکل 2017 میں وزیر اعظم میں ہوں گا اور صدر میرے پاپا ہوں گے. یہ بازی خون کی بازی ہے. یہ بازی ہم جیتیں گے. یہ بازی یہ بازی یہ بازی یہ بازی. خدین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے. اللہ حافظ ناصر.